মমতা ব্যানার্জির বাড়িটাই বেআইনি। ওকে আগে বলবেন ওর বাড়ির দলিলটা দেখাতে। আপনি অভিযোগ করছিলেন যে আমাদের হুমকি দিচ্ছে। আরে এই লোক ছোড়ো না, কর্মীরা আসো, ইতনা সিকিউরিটি কা ছবি আনে কা জরুরি নেই। স্যার আমাদের হুমকি দিচ্ছে স্যার। অভিযোগ করছিলেন যে কন্ট্রাকচুয়াল ঢুকিয়েছে। আমি কালকে অনেক রাতে পেয়েছি, এক্ষুনি লিখিত অভিযোগ করছি। গুন্ডাদের তালিকা চাইছিলেন যেভাবে ভগবানপুর পটাশপুরে এখানে প্রচুর গুন্ডা আছে, গুন্ডামি করে। এই নির্বাচনে গুন্ডা রাস্তায় থাকবে না। ব্যাক হিস্ট্রি আছে, কেসের তালিকা আছে, এনআইএতে জেল খাটা আছে। কোনো গুন্ডা রাস্তায় থাকবে না, থাকতে পারে না। দাদা সিউড়িতে গুন্ডা মুক্ত নির্বাচন ইলেকশন কমিশনই ঘোষণা করেছে। চিফ সেক্রেটারি বলেছে ছাপ্পা মারতে দেব না। সার্কুলার দিয়ে দূষণ নারিয়ালার সার্কুলার পড়ুন, 5টা গাইডলাইন দিয়েছে, তার মধ্যে বলেছে ছাপ্পা হবে না। তার মানে এতদিন ছাপ্পা হতো। ঠিক আছে, আমাকে খেজুরি তিনি আপনাকে বন্ধু বলে সম্বোধন করে বলছেন যে লোকসভা ভোটের নিরিখে আপনারা বলছেন ভবানীপুরে এগিয়ে, কিন্তু বিধানসভায় মমতাকেই ভোট দেবেন, সব হিসেব পাল্টে। ভালো ভালো, দিবা স্বপ্ন দেখা ভালো। উনাকে বলবো উনি উনার ওয়ার্ডে 77 নম্বর ওয়ার্ডে সব জায়গায় গুন্ডামিটা করবেন। ওনাদের ভোটারদের প্রতি যদি এত কনফিডেন্স থাকে, গুন্ডামিটা করবেন না, পোস্টার ব্যানার ছেড়বেন না, পুলিশকে লেলিয়ে দেবেন না। বাকিটা জনগণ বুঝে নেবে। গণতন্ত্রে আছে, আপনারা বুঝতে পারবেন। কোনো পশ্চিমবাংলার সচেতন লোক, শিক্ষিত লোক, বিবেক বুদ্ধিমান লোক, তিনি হিন্দু হতে পারেন, মুসলিম হতে পারেন, তৃণমূলকে ভোট দিতে পারে না। এই নির্বাচনে তৃণমূলকে ভোট দিতে পারে না, কিছুতেই পারে না। যে রাজ্যে 2,15,00,000 বেকার, যে রাজ্যে 1 কোটি যুবক পেটের দায় বাইরের রাজ্যে, যে রাজ্যে দুর্গা মূর্তি ভাঙা হয়, যে রাজ্যে কালী ঠাকুরকে প্রিজন ভ্যানে তোলা হয়, যে রাজ্যে বিহার, গুজরাট, উত্তরপ্রদেশের লোককে বহিরাগত বলা হয় আর বাংলাদেশি মুসলমানকে বলা হয় জামাই, যে রাজ্যে আরজিকর ঘটে, যে রাজ্যে ছোট্ট তামান্না ঘটে, যে রাজ্যে দুর্গাপুর মেডিকেল কলেজ ঘটে, যে রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন শরীর থাকলে জ্বর জারি হয়, তেমনি একটু আধটু রেপ হয়, এই রাজ্যে কোনো লোক তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দিতে পারে না। ওটা কলকাতা দেখবেন ব্যানারে ছেয়ে গেছে, রিজেক্ট করাপ্ট টিএমসি। আপনার যেটা নির্বাচনী কার্যালয় করা হয়েছে সেটা বেআইনি, আমি উত্তরই দেবো। দাদা সিউড়িতে ক্যারাম বিতর্ক না, মমতা ব্যানার্জির বাড়িটাই বেআইনি, কলকাতা পোর্টের জায়গায়। ওকে আগে বলবেন ওর বাড়ির দলিলটা দেখাতে, তারপরে আমি কাগজ দেখাবো। ও তো নিজেই মানবাজারে তৃণমূলের
आप सभी का भारतीय जनता पार्टी की प्रेस वार्ता में स्वागत है। जैसा आप सभी जानते हैं, बंगाल में चुनाव की घोषणा हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए बड़े आत्मविश्वास के साथ चुनावी मैदान में उतरे। हमारे विपक्ष के नेता श्री शुभेंदु अधिकारी जी ने भी चुनाव के पहले ही पूरे बंगाल का दौरा कर बंगाल में फैली अव्यवस्थाएं, अराजकता और आर्थिक बदहाली और विशेषकर घुसपैठ के मुद्दे को बंगाल के जन जन तक पहुंचाने का काम। मित्रों, बंगाल का यह चुनाव बंगाल के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, परंतु पूरे देश के लिए पूरे देश की सुरक्षा बंगाल के चुनाव के साथ एक प्रकार से जुड़ी। असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद असम से घुसपैठ कमोबेश समाप्त हो। अब एक ही रास्ता बचा है जहां से घुसपैठ होकर पूरे देश के अंदर घुसपैठिए फैलते हैं और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते। इसलिए बंगाल का एक चुनाव बंगाल के लिए महत्वपूर्ण है कई मायनों में और देश की सुरक्षा की दृष्टि से देश के लिए भी महत्वपूर्ण। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि तृणमूल कांग्रेस के शासन के खिलाफ जनता के जो मुद्दे हैं इसको आवाज देना, जनता की आवाज को मुखर कर बंगाल की जनता के सामने और देश की जनता के सामने प्रस्तुत करना और बंगाल के आने वाले चुनाव में ये पूरी जो अराजकता तृणमूल के शासन में फैली है इसका हम क्या हल लेकर आएंगे, इसका हम जवाब भी लेकर आएंगे। परंतु आज की प्रेस वार्ता तृणमूल कांग्रेस की इस सरकार के 15 साल के शासन के खिलाफ हमारा चार्जशीट ये आज की प्रेस वार्ता का मुद्दा है। ये चार्जशीट जो है वो तृणमूल कांग्रेस भले कहे भारतीय जनता पार्टी का चार्जशीट है, परंतु मैं मानता हूं कि बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ लगाया हुआ चार्जशीट है जिसको भारतीय जनता पार्टी एक आवाज दे रही। एक प्रकार से आने वाला चुनाव बंगाल की जनता को तय करना है कि भय को चुनना है या भरोसे को। भय के आतंक से मुक्ति पाकर भरोसे के साथ देश जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है इसके साथ बंगाल को जुड़ना चाहिए। ये तय करने का चुनाव विगत 15 सालों में भय, भ्रष्टाचार और भेदभाव की राजनीति चल रही है। झूठ, डर और हिंसा का सहारा लेकर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने का नया राजनीतिक थ्योरी ममता बनर्जी ने प्रस्तुत किया। कोई भी सरकार को चुनकर आने का आधार जन कल्याण के काम होते, तृणमूल कांग्रेस का चुनकर आने का आधार झूठ, डर और हिंसा। मगर भारतीय जनता पार्टी 1911 से 2011 से इसके खिलाफ एक संघर्ष कर रही है और मुझे लगता है कि इस बार बंगाल की जनता पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रही है।
ये जो चार्जशीट है टीएमसी के 15 साल के काले चिट्ठों का संकलन है। सोनार बांग्ला का स्वप्न दिखाकर सिंडिकेट राज स्थापित कर बंगाल की जनता का शोषण करने वाले शासन की कहानी है। तृणमूल कांग्रेस के कुशासन में बंगाल भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला बन चुका है। ऊपर से नीचे तक सफेद पोस्ट आपराधिक सिंडिकेट जनता को परेशान कर रहे हैं और विकास के अभाव में बंगाल इंडस्ट्री के लिए एक प्रकार से ग्रेवयार्ड बन चुका है। बंगाल टीएमसी के पोंचो बिपोर जॉय से ग्रसित यहां घुसपैठियों को प्रोटेक्शन दिया जाता है। तुष्टीकरण को अपना मिशन बना चुकी है सरकार। भ्रष्टाचारी प्रस्तावित रूप से राजनीतिक सिस्टम में पहुंच चुके हैं। कट मनी का कलेक्शन आम बात हो चुका है और सिंडिकेट पर नो एक्शन ये सरकार का स्वभाव बन चुका है। कई सालों तक कम्युनिस्ट शासन का दंश झेली हुई बंगाल की जनता ने सोनार बांग्ला के स्वप्न के साथ परिवर्तन किया था, मगर अब आज वही जनता कह रही है इससे तो कम्युनिस्ट अच्छे। ऐसा शासन 15 साल तक ममता बनर्जी ने के नेतृत्व में यहां अनुभव में आया है। आज मैं ये भी कहना चाहता हूं कि बंगाल की जनता ने लगातार भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है और ग्रेजुअली भारतीय जनता पार्टी कैसे बढ़ी है इसका मैं आज आप सबके सामने थोड़े आंकड़े भी जरूर रखना चाहूंगा। 2014 में हमारा 17% वोट शेयर था लोकसभा चुनाव में और 2 सीटें थी। 19 में हमारा वोट शेयर 41% हुआ, 18 सीटें प्राप्त की। 24 में हमारा वोट शेयर 39% हुआ और 12 सीटें हुई। तो हमने 40% वोट शेयर का बेस यहां पर बना है। 2016 के चुनाव में विधानसभा में हमारा 10% वोट था और केवल 3 सीटें हम जीत पाए थे। 21 के चुनाव में 10% से बढ़कर 38% तक हम पहुंचे और 77 सीट के साथ हमारे विधायक दल का श्री शुभेंदु जी नेतृत्व कर रहे हैं। 30 साल तक जो 2 पार्टियों ने यहां पर लंबे समय तक शासन किया, कांग्रेस और कम्युनिस्ट, दोनों को 0 सीटें प्राप्त। मित्रों, 2024 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, उड़ीसा, दिल्ली और बिहार इस सभी जगह पे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए ने अप्रत्याशित जीत हासिल की है और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी जो कैडर है, हमारे कार्यकर्ता है, वो जन जन तक पहुंचे हैं, जनता की आवाज को मुखर कर आवाज दे रहे हैं और इस बार बंगाल की जनता ने ये तय किया है कि प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां बनाई जाएगी। ये चुनाव जो है वो एक प्रकार से जान जाने के भय से मुक्ति का चुनाव है, आजादी जाने के भय से मुक्ति का चुनाव है। पूरे बंगाल का बहुमत समाज डेमोग्राफिक चेंज, आर्टिफिशियल डेमोग्राफिक चेंज के कारण भय में जी रहा है कि हमारे ही देश में कहीं हम माइनॉरिटी तो नहीं बन जाएंगे। वो भय से मुक्ति का, अपनी संपत्ति के लूटने के भय से मुक्ति का चुनाव, रोजगारी छीनने के भय से मुक्ति का ये चुनाव, महिलाओं की सुरक्षा खतरे में है इसके भय से
मुक्ति का चुनाव है और युवाओं के भविष्य पर जो भय और अंधकार छाया है इसके मुक्ति का चुनाव। ये चुनाव शांति के भरोसे का है, सम्मान की जिंदगी की गारंटी का चुनाव है, मुफ्त इलाज गरीब को मिले इसके भरोसे का चुनाव है, पक्के घर का अधिकार सिंडिकेट न छीन ले इसके भरोसे का चुनाव है, मुफ्त बिजली हर गरीब तक पहुंचे इसके विश्वास का चुनाव है, हर घर में नल से जल पहुंच जाए इसके भरोसे का चुनाव है, युवाओं के उज्जवल भविष्य का भरोसे का चुनाव है और घुसपैठियों से मुक्त एक बंगाली समाज की रचना के भरोसे का चुनाव। और ये भरोसा आज बंगाल के चुनाव का मुख्य मुद्दा बना है। भय को निकालना, भरोसों के प्रस्तावित करना, इसका मतलब है टीएमसी को हटाना और भारतीय जनता पार्टी का शासन यहां पर लाना। मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास की देश के अंदर एक बहुत स्पीड के साथ रफ्तार चली है, बंगाल इसके साथ जुड़ना चाहता है। मैं 2014 से लेकर आज तक देश में जो परिवर्तन आया है इसके तरफ भी आपको बताना चाहता हूं। 15 में